ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜੋ P ਵਟਾ Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ P ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ Q not equal to 0 ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ P ਵਟਾ Q, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਹੈ ਤੇ P ਅਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ P ਦੇਖੋ ਅਤੇ P ਅਤੇ Q ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਅਤੇ Q ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਕੁਐਸਚਨ 8 ਇੱਕ ਲੜਕਾ वास्तविक संख्या रेखा ते चल रहा है। एक लड़का है जो वास्तविक संख्या रेखा ते चल रहा है, उसका पिछला पैर डैश अते अगला पैर डैश ते है। इसलिए साडे कोल एक संख्या रेखा दी हुई है जो है साडे कोल 0 1 2 3 4 अते 5। फिर खब्बे पासे माइनस विच -1 -2 -3 -4 दो तो बाद साडे कोल दिता होया इत्थे 9/4। ਹੁਣ 9/4 देखिए साडे कोल की बनता है 9 ते 4 बाहर 4 दूनी 8 1 बचा 0 आ गया साडे कोल 4 दूनी 8। ਹੁਣ 0 आपको लगाया ना सी इसलिए पॉइंट लग गया 8 आ गया, फिर 2 बचिया फिर 0 लगाने 4 5 20। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल आ गया 2.25 जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ 2 ਐਂਡ ਕੁਆਟਰ 2 ਐਂਡ 2.5 ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2.5 ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0 ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 0 ਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰ कितने है 9/4 मतलब कि 2.25 ਤੇ। इसी सवाल नंबर साडे कोल 8। फिर सवाल आता साडे को क्वेश्चन नंबर 9 जिस में साडे को दिता है कि वर्गमूल 5 नूं संख्या रेखा ते दर्शाओ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ h ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ p ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ P है उसनों ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1 ਰੱਖਣਾ ਹੈ, मतलब परपेंडिकुलर ਜਾਂ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। h ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 p ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ b ਦਾ ਵਰਗ। ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ
उस साइड ते बन जाता है। एच की आ जाएगा साडे कोल, देखो इत्थे असीं बनाना है 5, इस जगह दे विच 5 बनाना है रूट दे विच। हुण पी साडे कोल 1 होएगा, ठीक है, मतलब 1 का स्केयर हो गया, ये आ गया 1। हुण 1 दे विच कितना जोड़िए, 4 जोड़ांगे असीं, 4 ही ऐड करांगे ना, फिर साडे कोल 5 आएगा क्योंकि असीं इस दे विच 5 बनाना है। हुण 4 नूं लिख सकदे 2 का रूट प्लस करता असीं 2 का रूट, ठीक है, ये साडे कोल आ जाएगा 1 + 4 h = रूट की आ जाएगा 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ रूट 5 ਨੂੰ किस तरह नंबर लाइन ਤੇ दर्शाना है संख्या रेखा ਤੇ देखते हैं। ये ਅਸੀਂ एक संख्या रेखा तैयार कर ली है जिथे ਅਸੀਂ लिखा 0, फिर लिखा सी 1, फिर लिखा सी 2, फिर लिखा सी 3। ये ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिट ने ਅਸੀਂ एक इक्वल डिस्टेंस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूनिट ਦੇ साइन ਜਿਹੜੇ लगा ਲੈਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ देखो बेस ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 2, मतलब कि 2 यूनिट तक ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 आ गया। परपेंडिकुलर ਅਸੀਂ इस साइड तो रखना है, वो रखना है 1। ਹੁਣ 1 ਕਿੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ डिस्टेंस रख के ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ p, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 यूनिट। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ √5। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ उसका जो नकीला पॉइंट होंगे है कंपस का ही, उसको असी इस जगह ते रखना, इत्थे की रखनी असी प्रकार कंपस, क्लियर। फिर असी जिहड़ी पेंसिल लगाई हुई उस पेंसिल को असी इस जगह ते ले लेना, इस तो असी एक जिहड़ी आर्क है इस तरह लगाते जाना है, तो आर्क इस बेस लाइन जिहड़ी साडी मेन लाइन है उसको जिस जगह ते कट रही है वो साडे कोल √5 का जिहड़ा साडे कोल पॉइंट आ जिहड़ा कि साडे कोल शो हो नंबर रेखा ते हो जाएगा, क्लियर। फिर साडे को क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दे विच की दिता होया साडे कोल 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ 6 परमेय संख्यावां लिखो। की है साडे को असी 6 जिहड़े रेशनल नंबर्स असी 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लिखने हैं। हुण ध्यान देना कि किन्ने नंबर लिखने 6 तो असी एक वध जिहड़ा कि आंदा साडे को 7 आंदा है, ठीक है। जिन्ने भी नंबर सानू क्या है लिखण नूं संख्यावां उस तो एक ज़्यादा दे नाल असी दोवें संख्यावां जिहड़ा कि गुणा कर लैणी है। 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 7 21 ਤੇ 4 7 28। ਹੁਣ 28 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ 21 ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 22 23 24 25 26 27 ਅਤੇ 28। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਅਗਰ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और दूसरा मैथड कि जो बेसिक साडे कोल सिंपल ही होना चाहिए है। देखो 3 ਅਤੇ 4 की गल कर रहा है, संख्या रेखा बारे सानू पता है कि मान लिया 0.1 है, आ 2 है, आ 3 है, ठीक है। 3 तो बाद सानू पता है कि 4 आता है। हुण 3 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ਅਤੇ 3.10 ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਜਦੋਂ ਵੀ 10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਨੰਬਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 11।
फिर साडे को सवाल नंबर आता है 11, जिस है साडे को हल करो मतलब कि सॉल्व। सॉल्व की करना है असी 10 प्लस √3 10 माइनस √3। देखो दोवें फैक्टर जो साडे को दिते हुए हैं साडे को इक्को जिहे हैं, सिर्फ फर्क की है साडे को प्लस ते माइनस है जिहड़ा फर्क साडे को आता है। हुण सानू पता इत्थे साडा बीजगणित जिहड़ा साडा लगेगा वो तत्समक जिहड़ा लगेगा साडे को किहड़ा लगेगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर आ जाएगा साडे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साडे को जिहड़ी आइडेंटिटी साडी हुंदी है। हुण a की होएगा साडे को इत्थे 3 ते b की होएगा साडे को √3। सब तो पहला असीं 3 a दा स्क्वायर करदे हां, 3 दा वर्ग करता, फिर असीं √3 दा वर्ग जिहड़ा करता। हुण जिहड़ा वर्गमूल हुंदा है वर्ग दे नाल जिहड़ा साडे को कैंसल हो जाता है। ध्यान रखना इस गल दा हमेशा जिहड़ा रूट है वर्ग के नाल कट्टिया जाएगा। साडे को आ गया 3 का वर्ग माइनस 3, 3 ते किन्ने आ गया 9 माइनस 3 माइनस करके आंसर कितना आ गया साडे को 6। साडे को आंसर है वो आ जाता है। फिर क्वेश्चन आता है साडे को 12, वो भी साडे को क्या सॉल्व हल करो। हल की करना साडे को 2 की घात दी हुई है पहला 23, क्लीयरली दिख नहीं रहा इतने साडे को आप मानते हैं 2 की घात 23 दी हुई है। तो उस तो बाद फिर साडे को गुणा दे विच दिता होया 2 की घात 15। हुण जिहड़ा ये सवाल है देखो इत्थे जिहड़ी आइडेंटिटी साडे को की लगेगी a दी p गुणा a दी q, ये बराबर की होंगी साडे को। देखो आधार इसनों असीं आधार बोलते हैं, इसनों असीं घात बोलते हैं। आधार ते घात या बेस एंड इंडेक्स बोलते हैं। जो बेस साडे को इक्को जे हन, आधार मतलब कि इक्को जे हन, सिंपल भाषा च कहिए नीचे साडे को इक्को ही संख्या दी होवे a है दिता है तो ऊपर घात जिहड़ी अलग अलग होण, जिस तरह ये दिता होया साडे को तो की होएगा साडे को a p जमा q, मतलब उन्हें ये घातां जिहड़ियां वो जुड़ जांदियां हन। क्लीयर, इत्थे साडे को आएगा 2। हुण 2 की घात कितनी है पहला 23 है दी हुई, फिर कितनी है 15। इन्हां नूं असीं जोड़ दिंदे हां, साडे को की आ गया 23 ते 15 नूं जोड़िया साडे को आ गया 8 ते 38। 2 की घात कितनी आ गई साडे को 38। एक गल का ध्यान रखना है हमेशा जो साडे को आधार इक्को जे दिते आ उन्हां दीयां घातां अलग अलग हैं तो उन्होंने असीं जोड़ देना ते होना की चाहिए साडे को गुणा दे विच। ठीक है, जो भी गुणा है गुणा का की बन जाना साडे को प्लस जिहड़ा कि हो जाना है। फिर साडे को इस दे विच ही बी भाग दिता होया है क्वेश्चन 12 का ही। क्वेश्चन 12 दा बी पार्ट 2 की घात दी हुई साडे कोल 2/3, फिर साडे को ब्रैकेट है वड्डी, फिर साडे को उसके बाद जिहड़ी घात दी गई 1/3। कुछ इस तरह है, थोड़ा मिसप्रिंट भी है, दिख नहीं रहा चंगी तरह, सो आप इस तरह ही मान लेंगे हाँ। ये साडे को आएगा देखो आइडेंटिटी लगेगी a की घात p ते उसके बाद फिर जिहड़ी q घात, ये हुंदा है a p गुणा q। सिंपल होया की है जो साडे को 2 घातां दित्ती हुण एक घात साडे को विच दित्ती होवे एक बाहर दित्ती होवे तो दोवें घातां आपस विच की हो जाणियां गुणा साडे कोल हो जांदियां हन। सो साडे कोल की होएगा 2 की घात 2/3 गुणा 1/3, साडे को बराबर की आ जाएगा 3 गुणा 3 कर देंगे 2 गुणा 1 कर देंगे। हमेशा साडे को जिहड़ियां बटे विच संख्यावां होण प्रमेय संख्यावां नीचे नीचे गुणा हो जांदियां, ऊपर ऊपर गुणा हो जांदियां हन। 3 3 9 ते 2 एकम 2, साडे को 2 की घात 2/9 साडे को आंसर है वो आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है साडे को 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे विच की साडे कोल है लिखते हैं 2/11 दा दशमलव रूप डैश है, इसकी डेसिमल फॉर्म जिहड़ी असीं वो लिखनी है। किस तरह पता लगेगी, सानू पता ऊपर की पिया है अंश दे विच 2 पिया है, नोमीनेटर दे विच 2 पिया है, डिनोमीनेटर दे विच साडे को 11 पिया है। ये साडे को आ गया 2, इधर आ गया साडे को 11। हुण 2 जिहड़ा 11 तो छोटा है, 11 दे पहाड़े च मतलब कि 2 नहीं आता, असीं एक 0 जिहड़ी लगाती
जो जीरो लगे ऊपर जीरो लगी तो पॉइंट साढ़े को लग गया। 11 एकम 11 कर दिता गया, फिर माइनस किया साढ़े को आ गया 9, फिर जीरो लगी एक, ठीक है। 11 8 कितना आ गया साढ़े को 88, फिर साढ़े को कितना बच गया 2, फिर जीरो लगी साढ़े को, फिर 11 एकम 11 आ गया, फिर साढ़े को कितना बचता है 9 बचता है, फिर जीरो लगेगी साढ़े को 90 आ गया, 11 8 फिर 88 ਜਿਹੜਾ आ जाएगा, फिर साढ़े को 2 बच जाएगा। देखो इस तरह चलता रहेगा जी, ये भी इस तरह चलता रहेगा। इसलिए 2/11 का दशमलव रूप की हो गया 0.18। हुण 18 ਜਿਹੜਾ रिपीट कर रहा है 18 18 18 ही आएगा। इत्थे ਅਸੀਂ एक ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 18 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। क्वेश्चन 14, एक परमेय संख्या मतलब कि एक रेशनल नंबर अते अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर दा गुणनफल डैश हुंदा है हुण देखो साडे को एक परमेय संख्या दी गई है, दूसरी साडे को गुणा दी है अपरमेय संख्या। की बनती है गुणा कर आती है परमेय संख्या च आएगी, जां इसकी गुणा साडे को परमेय संख्या में आती है, वेखते हैं काहदे विच आती है। हुण एक परमेय संख्या सानू पता सारियां परमेय संख्यावां हुंदियां ने साडे को, ठीक है। ये साडे को आ गया 2, तो साडे को एक परमेय संख्या, क्योंकि असीं सारियां दा मतलब है कि जिस संख्या नूं असीं p/q दी फॉर्म च लिख सकीए, जिस संख्या नूं असीं p/q दे फॉर्म च लिख सकीए जिहदे विच q बराबर 0 दे ना होवे, वो परमेय संख्यावां साडे कोल हुंदियां हन। मान लो असीं एक संख्या ले लई 2 जो साडे कोल परमेय संख्या है, दूसरी ले ली असीं वर्गमूल 2 जो साडे कोल परमेय संख्या है। दोवां नूं गुणा करते साडे कोल आ गया 2 वर्गमूल 2। देखो नाल परमेय संख्या रही है ना, सो जदों आपां परमेय संख्या नूं गुणा करांगे तो साडे कोल आंसर का आ जाएगा परमेय संख्या च आएगा। थोड़ा जिहा होर देखदे आ ध्यान नाल। हुण साडे कोल मान लो कि 2 है, 2 नूं असीं गुणा कर दिंदे हां 1.412 दे नाल। हुण जदों गुणा किया देखो साडे को आ गया 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8.2। आंसर का आ गया पॉइंट में आ गया ना साडे को, मतलब कि जो पॉइंट वाली संख्या ना किसी संख्या को गुणा करेंगे तो आंसर पॉइंट च आएगा। इसलिए परमेय संख्या को जो परमेय संख्या ने गुणा किया तो आंसर साडे को आ गया परमेय संख्या दे विच जिहड़ा कि आ जाता है। फिर साडे को सवाल नंबर आता है 15, जिस भी साडे कोल है 3 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 243 नूं गुणा करो। आपां की करना है मल्टीप्लाई, इन्हां सारियां संख्यावां नूं मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करना है देखते हैं। सल्यूशन च आ गया साडे कोल 3 वर्गमूल 3 गुणा 4 वर्गमूल 3 गुणा 12 वर्गमूल 243। हुण जिहड़ा 243 है उसनूं असीं किस तरह लिख सकते हैं, देखो 243 3 8 24 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 7 21 3 27 3 तीए 9 3 एकम 3। हुण साडे कोल की आ गया वर्गमूल दे विच की आ जांदा है 5 वारी 3 आ गया साडे को 3 वर्गमूल 3 गुणा 4 वर्गमूल 3 गुणा 12 इत्थे आ जाएगा साडे को। देखो ये 2 वाले सेट आ गए ना साडे, इत्थे सिर्फ 3 लिख सकते 3 दी 2, इत्थे भी 3 दी 2 लिख सकते, एक 3 साडे को कल्ला बच गया। असीं लिख लिया 3 दी 2 गुणा 3 दी 2 गुणा 3।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ रूट ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ रूट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 3 वर्गमूल 3 गुणा 4 वर्गमूल 3 गुणा 12। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ 3 ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ वर्गमूल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ वर्गमूल 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। बाकी की बच गया साडे को 3 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 3 गुणा 3। ये साडे कोल की आ गया वर्गमूल 3 की घात 2 हो गई, वर्गमूल 3 साडे को फिर एक बच गया, 3 चौके 12 12 ती 36 गुणा 3। ये कट्टिया गया साडे को रह गया वर्गमूल 3 इधर, फिर ये वाला 3 इधर गुणा हो गया 12 36 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ गुणा कर लो, ਜਾਂ फिर ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 तिया 36 गुणा 36 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ वर्गमूल 3। ਹੁਣ 36 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ गुणा ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 36 3 ਹਾਸਾ ਜੀ ਤੇ 18 21 3 6 18 1 3 ਦੀਆਂ 9 ਤੇ 1 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 9 2 1 1296। ਫਿਰ गुणा ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ 18 1 हासिल 9 ती 27 ਤੇ 28 2 हासिल 3 दूनी 6 ਤੇ 7 8 3 एकम 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾ 3 8 8 8। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 8 8 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ वर्गमूल 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।